السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ BPSC TRE 4 کے لیے آج کا یہ کلاس نمبر 53 ہے۔ آج کے کلاس میں ہم اور آپ پڑھنے والے ہیں سر سید احمد خان کا عہد۔ کہ اگر آپ AR ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں یا پرانے ساتھی ہیں، ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ لائیو کلاس میں جوائن ہو سکیں، شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، سر سید احمد خان کے عہد میں کیا کیا تصنیفات کا جو ہے آغاز ہوا، ارتقاء ہوا: مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری۔ تو دوستو اتنے سارے تصنیفات کا آغاز ہوا ہے کب؟ تو سر سید احمد خان کے عہد میں۔ تو اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جو عہد ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ کلاس ہوگا، اب چاہے آپ BPSC کی تیاری کر رہے ہوں یا پھر جھارکھنڈ TT کی تیاری کر رہے ہوں، DSSB کی تیاری کر رہے ہوں، بہار STET کی تیاری کر رہے ہوں، ہر جگہ آپ کو یہ کلاس کام آنے والا ہے۔ تو مکمل کلاس کو دیکھیے گا اور کنفرم کرائیے گا آڈیو ویڈیو کے حوالے سے کہ ہماری آواز، ہمارا آڈیو ویڈیو آپ کو مل رہا ہے۔ دوستو اگر بات کریں ہم سر سید احمد خان کا جو عہد ہے، اس عہد کی اگر بات کی جائے تو اس عہد میں کون کون لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں؟ تو مولانا محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، علامہ راشد الخیری، یہ سارے کے سارے لوگ سر سید خان کے عہد سے اور کسی بھی ایگزام کے نظریے سے بہت امپورٹنٹ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا عہد، اتنا زوم کر دیا ہوں، آئی تھنک اتنا آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک بڑے رہنما اور مصلح ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر توجہ دی اور جہاں جہاں خرابیاں، غلطیاں نظر آئی، انہیں دور کرنے کی عملی کوشش کی۔ انہی کوششوں کو سر سید تحریک یا پھر علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو ادب پر سر سید کی تحریک کے گہرے اثرات ہیں۔ انہوں نے مضامین کے ذریعہ علمی نثر کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے جو ہے سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعہ علمی نثر کی بنیاد ڈالی۔ ان کے عہد میں بہت سے ایسے ادیب ہوئے جنہوں نے اردو نثر کے ارتقاء اور فروغ میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ STT 2023 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اردو مطلب جو ہے نثر کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو سر سید احمد خان نے۔ ایک اور سوال تھا کہ نثر کی بنیاد کس تحریک کے دوران پڑی؟ تو دوستو نثر کی جو بنیاد ہے یہ سر سید تحریک یا پھر علی گڑھ تحریک کے دوران مانا جاتا ہے۔ اسی عہد میں یعنی سر سید کے زمانے میں مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ باقاعدہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ہر ایک کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مضمون نگاری کی۔ عہد سر سید سے پہلے اہل قلم کسی موضوع پر یا تو مستقل کتابیں لکھتے یا رسالے تصنیف کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں کسی موضوع پر اظہار خیال کا سلسلہ پہلے دہلی کالج سے شروع ہوا، جسے آگے چل کر سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے فروغ دیا۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعے اس میں کیا ترقی کی اور اس کو آگے بڑھایا۔ الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی بھی اسی عہد کے اہم مضمون نگار تھے۔ کون تھے؟ اسی عہد کے مضمون نگار تھے۔ سر سید کے دوسرے رفیقوں میں محسن الملک، چراغ علی اور مولوی ذکا اللہ نے بھی مضمون نگاری میں نمایاں حصہ لیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس بار BPSC میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید کے رفقا کی نشاندہی کرنا ہے۔ رفیق کی جمع ہے رفقا، مطلب ہوتا ہے دوست، ہے نا؟ تو دیکھیے ایک نمبر پہ آپ کو مل جائے گا محسن الملک، دوسرے نمبر پہ ہے مولوی چراغ علی اور تیسرے نمبر پہ ہے مولوی ذکا اللہ۔ یہ تینوں کے تینوں سر سید احمد خان کے دوستوں میں ان تینوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور ابھی TRE 3 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، اگر آپ نے کوشچن دیکھا ہوگا۔
जी, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि ये तीनों मोहसिनुल मलिक, मौलवी चिराग अली और मौलवी ज़काउल्लाह, ये तीनों सर सैयद के क्या है, रफ़ीक़ों में हैं, दोस्तों में हैं। इंशाइया निगारी की बात करते हैं तो इंशाइया भी मजमून ही की एक किस्म है। उर्दू में इंशाइया का सिलसिला भी सर सैयद से शुरू होता है। उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ ज़माना, बहसो तकरार और खुशामद जैसे उनके मुतअद्दद मज़ामीन में इंशाइये की झलक मिलती है, इंशाइये का अंदाज़ मिलता है। इसी अहद में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंशाइया निगारी के फ़न को बहुत फ़रोग़ दिया। इन्होंने अंग्रेज़ी के तमसीली मज़ामीन के तर्ज पर उर्दू में भी इंशाइये लिखे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ये इंशाइये नैरंगे ख़याल के नाम से शाये हुए हैं और नैरंगे ख़याल बहुत वीवीआईपी है। अक्सर व बेशतर इम्तिहानों में, अक्सर व बेशतर मुकाबला जाती एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। नावल निगारी की बात करते हैं तो उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ भी इसी ज़माने से होता है। माना जाता है कि उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। मिरअतुल उरूस, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसू और बनातुन नाश ये इनके मशहूर नावल हैं। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने जिस नावल को दोस्तों जिस नावल को लिख करके उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ किया, नावल निगारी की इब्तिदा की, वो मिरअतुल उरूस है। शमन नज़ीर, टाइम चेंज नहीं हुआ है बल्कि किसी वजह से मुझे लेट हो गया है। नावल निगारी की रिवायत को इसी अहद में पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुसवा ने बहुत कामयाबी और ख़ूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। सरशार के फसाने आज़ाद और अब्दुल हलीम शरर के फिरदौस बरी, मिर्ज़ा हादी रुसवा के उमराओ जाने अदा का शुमार इस अहद के अहम नाविलों में होता है। यानी 19वीं सदी, जी किस सदी, 19वीं सदी, याद रखिएगा शुरू में आपने पढ़ा ना 19वीं सदी का जिक्र है। अब बात करते हैं सवानेह निगारी की। अहद सर सैयद की एक खुसूसियत यह भी है कि इसमें न सिर्फ उर्दू में सवानेह निगारी की रिवायत कायम हुई बल्कि बड़ी हद तक इसके उसूल व आदाब भी मुतअय्यन हुए। उस दौर के सबसे पहले और बाकायदा सवानेह निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इन्होंने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद जैसी अहम सवानेह उमरियाँ लिखी। हयात सादी जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है, यादगार गालिब जी असदुल्ला खां गालिब की सवानेह है, हयात जावेद सर सैयद की सवानेह है। आम तौर पर हयात जावेद के बारे में पूछा जाता है क्योंकि हयात सादी में सादी का नाम, यादगार गालिब में गालिब का नाम, लेकिन हयात जावेद में सर सैयद का नाम नहीं है, लेकिन ये सर सैयद की सवानेह उमरी है। और जब अल्लामा शिबली नौमानी ने मतलब जो है हयात जावेद के बारे में कहा था कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस सवानेह उमरी में मुकम्मल और मुदल्लल मद्दाही की है, यानी उनकी क्या मदह की है, तारीफ़ की है। अगर मैं इसको आम ज़बान में कहूँ, ठेठ भाषा में कहूँ तो कह सकते हैं कि मतलब होता है ना कि भाई आप किसी को तारीफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको तारीफ़ जब आप किसी की करते हैं तो चापलूसी एक वर्ड बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अल्लामा शिबली नौमानी ने इसी पर कहा है कि हयात जावेद को लिख करके अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या किया है, चापलूसी की है सर सैयद। खैर, इस रिवायत को अल्लामा शिबली नौमानी ने आगे बढ़ाया और इन्होंने अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नुअमान और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह इनकी मशहूर सवानेह उमरियाँ हैं। तो सवानेह निगारी का भी बाकायदा आगाज़ सर सैयद के दौर से होता है और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है इस सवानेह निगार हैं, पहले बाकायदा सवानेह निगार तस्लीम किए जाते हैं। अब तारीख़ निगारी की अगर बात करते हैं, अहद सर सैयद में उर्दू में बाकायदा तारीख़ नवेसी का सिलसिला शुरू होता है। सर सैयद की तसानीफ़ में आसारुस सनादीद, तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर और असबाब बगावत हिंद वगैरह तारीख़ नवेसी के दायरे में आती है, तारीख़ नवेसी के दायरे में आती। इसी तरह शिबली नौमानी के यहाँ तारीख़ नवेसी का एक ख़ास ज़ौक़ नज़र आता है। इन्होंने बकसरत तारीख़ी मज़ामीन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लिखे और तारीख़ी मौज़ूआत पर मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम
औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र और तारीख़ इल्मुल कलाम जैसी किताबें भी तसनीफ़ की। और तारीख़ इल्मुल कलाम टीआरई 2 में पूछा गया है। जी, टीआरई 2 में तारीख़ इल्मुल कलाम पूछा गया है। इस ज़िम्न में मौलवी ज़काउल्लाह की खिदमात बतौर काबिल ज़िक्र हैं। हर लाइन पे गौर कीजिएगा, अगर आप हर लाइन पे गौर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एक वाला पॉइंट आपका छूट जाएगा। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली और एक कौन थे तीसरे, जो सर सैयद के रफ़ाक़ा हैं, टीआरई 3 में उनके बारे में पूछा गया है सवाल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे आपको गौर करना। तीसरे का नाम बताइए। अभी मैंने बताया मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली, और तीसरे कौन है, कमेंट करके बताइए। इनकी लिखी हुई तारीख़ हिंद कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब्दुल हलीम शरर के तारीख़ी मज़ामीन और ख़ास तौर पर इनकी जो किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, क्या है किताब का नाम, गुज़िश्ता लखनऊ, जी, भी तारीख़ नवेसी में आला मर्तबा रखती है। तो ये हो गया आपको तारीख़ नवीसी। अब बात करते हैं तनकीद निगारी की। उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी का आगाज़ भी अहदे सर सैयद से ही होता है। उर्दू के पहले बाकायदा नक्काद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुक़दमा शेर व शायरी है। तनकीदी किताब मुक़दमा शेर व शायरी जो 1893 में है शाये हुआ, वो है। हाली ने इसमें शेर की माहियत, अच्छी शायरी की खुसूसियात और शायर के फ़राइज़ वग़ैरह से बहस के बाद अपने नज़रियात की रोशनी में उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ जैसे गज़ल, मसनवी, मरसिये वग़ैरह का तनकीदी जायज़ा लिया। क्या लिया? तनकीदी जायज़ा लिया। बहुत अच्छा उर्दू स्टोरी, मोहसिनुल मलिक, सुरैया मुसर्रत, रिजवान सिवान, जी बहुत उम्दा। उस दौर के दूसरे अहम नक्काद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात भी इसी दौर से ताल्लुक़ रखती है, मगर इसमें तनकीद से ज़्यादा तहसीन का पहलू हावी है। यानी इन्होंने जब ये लिखा है इसमें जो है अच्छाई को ज़्यादा बयान किया है। आबे हयात में क्या है दोस्तों, तनकीद से ज़्यादा तहसीन का पहलू गालिब है, हावी है। का मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने किसी पर तनकीद की है तो उसमें उनकी ज़्यादातर अच्छाइयों को बयान किया है। अल्लामा शिबली नौमानी का शुमार भी इसी अहद के अहम नक्कादों में होता है। मुआजना अनीसो दबीर और शेरुल अजम में इन्होंने अपने तनकीदी नज़रियात तफसील के साथ पेश किए हैं अल्लामा शिबली नौमानी ने। बहुत अहम पॉइंट्स जो ऊपर गुजर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ां का असल नाम था सैयद अहमद ख़ां। पैदाइश 1817 दिल्ली में हुई, वफ़ात 1898 अलीगढ़ में हुई। सर सैयद अहमद ख़ां के अहद में मज़मून निगारी, इंशाइया निगारी, नाविल निगारी, सवाने निगारी, तारीख़ निगारी, तनकीद निगारी का बाकायदा आगाज़ हुआ। और ये है आपका VVIP पॉइंट, ये है स्टार मार्क लगाने वाला पॉइंट। कितने सारे मतलब जो है मज़मून निगारी, इंशाइया निगारी, नाविल निगारी, सवाने निगारी, तारीख़ निगारी और तनकीद निगारी, इन 6 मतलब जो है असनाफ का आगाज़ कहाँ से होता है? सर सैयद अहमद ख़ां के अहद से। मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी का आगाज़ सर सैयद से होता है। सर सैयद के मज़ामीन उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, बहस व तकरार और खुशामद में इंशाइये का अंदाज़ मिलता है। नाविल निगारी का बाकायदा आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद से होता है और मिरअतुल उरूस पहला नाविल है। सवाने निगारी और तनकीद निगारी का बाकायदा आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली से होता है। सवाने जो है हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद सवाने निगारी तसनीफ़ है और मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तनकीद निगारी उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुक़दमा शेर व शायरी है, 1893 में शाये हुआ और इसके भी मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इन्होंने मुक़दमा शेर व शायरी लिख करके उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी का आगाज़ किया। अगर यहाँ पर सवाने निगारी की बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात सादी लिख करके सवाने निगारी का बाकायदा आगाज़ किया। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से 1862 में एक अंजुमन बनाई थी और साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में 2 सवाल पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी को सर सैयद ने कहाँ कायम किया, तो गाज़ीपुर में कायम किया। दूसरा सवाल है कि साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुआ, 1862 में। ये दोनों सवाल आमतौर पर पूछा जाता है।
1869 में इंग्लिस्तान गए, 1.5 बरस तक इंग्लिस्तान में रहे। वापसी के बाद इन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक स्कूल कायम किया और ये स्कूल सन 1878 में मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और रफ्ता रफ्ता 1920 में जब सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया तो ये अलीगढ़ बन गया, जिसे हम और आप जो है आज के दौर में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खान को सन 1878 में सर का खिताब मिला था और सर का खिताब जब इनको मिला और सर उनके नाम के साथ ऐसा लगता है कि सर उनके नाम का हिस्सा है, लेकिन सर उनका खिताब है, हिस्सा नहीं उनके नाम का। उनका असल नाम है सैयद अहमद खान। तसनीफ़ात की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ात में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर उनकी ख़ास तसानीफ़ हैं। उनकी क्या है? ख़ास तसानीफ़ हैं। क्या आप भी करना चाह रहे हैं BPSC क्वालिफाइड, UGC नेट, STET, TGT, PGT या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा YouTube चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है मोहसिनुल मलिक का। असल नाम था सैयद मेहदी अली और खिताब था मोहसिनुल मलिक। पैदाइश 1817 से 1837 के दरमियान में एटावा में हुई। अब देखिए NCERT बताता है कि 17 से 37, तो अब मैं इसको कोई एक डेट तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब NCERT जो है कई टीम मिल करके इस किताब को तैयार की है, इस मवाद को तैयार किया है, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो इसका जो है प्रमाण दे सकें, इसका जो है कोई ठोस सबूत दे सकें कि भाई उनकी एग्जैक्ट किस सन में पैदाइश हुई। इनकी वफ़ात 1907 में हुई। इन्होंने कानून के मौजू पर 2 किताबें लिखी जिन्हें अंग्रेज़ हुक्काम ने मुफीद करार दिया और उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया। क्या बनाया? मोहसिनुल मलिक को डिप्टी कलेक्टर बनाया। इनकी खिदमात के एतराफ़ में रियासत की तरफ से मोहसिनुद्दौला, मोहसिनुल मलिक और मुनीर नवाज जंग के खिताब अता हुए। शिमला में इनका इंतकाल हुआ और अलीगढ़ में इनकी तदफीन हुई। अगले मुसन्निफ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 दिल्ली में हुई, वफ़ात 1910 में हुई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम था मौलवी मोहम्मद बाकर। उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार भी इन्होंने निकाला था। मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदुस्तान के पहले सहाफ़ी थे जिन्हें अंग्रेज़ों से बगावत के जुर्म में गोली मार दी गई थी। जी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इनके वालिद ने तालीम व तरबियत के लिए शेख इब्राहिम ज़ौक़, जी शेख इब्राहिम ज़ौक़ के सुपुर्द किया था, मतलब शेख इब्राहिम ज़ौक़ के हवाले किया था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के बड़े इंशा पर्दास थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तसनीफ़ात की बात की जाए तो आबे हयात 1881 में मंजर आम पर आया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शाहकार है। जी, आबे हयात उर्दू ज़बान और शायरी की पहली तारीख़ है। जी, आबे हयात क्या है? उर्दू ज़बान और शायरी की पहली तारीख़ है। नैरंगे ख़याल, दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस ये इनकी अहम तसनीफ़ात हैं। नैरंगे ख़याल इन शाइयों का मजमुआ है, आप जानते होंगे। खुतूत का मजमुआ है मकतूबात आज़ाद जो 1907 में शाये हुआ। अलक़ाब व खिताब की बात की जाए तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। बच्चों के लिए इन्होंने जो नज़में लिखी है इम्तिहान सर पे खड़ा, शबे सरमा, शबे अब्र, सलाम अलैका, जैसा चाहो समझ लो, ये इनके बच्चों के लिए लिखी गई नज़में हैं। नसरी मज़ामीन की बात करें तो नसीहत का करन फूल, आईने सेहत, धोबी कपड़ा धो रहा है, लड़का मदरसे जाता है, सुबह की हवा खोरी, मुर्ग और गिलहरी वगैरह बहुत मशहूर मज़ामीन हैं जो इन्होंने लिखे हैं।
इन्होंने तलबा के लिए क़िसस हिंद यानी हिंदुस्तान की कहानियाँ, तारीख़ी कहानियाँ भी मुरत्तब की हैं। मौलवी ज़काउल्लाह साहब की बात करते हैं। मौलवी ज़काउल्लाह की पैदाइश दिल्ली में 1832 में हुई। इनकी वफ़ात 1810 में दिल्ली में हुई। 1869 में सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रोफेसर के ओहदे पर मुकर्रर हुए। इन्होंने रियाजी, तारीख़, जोग्राफिया, फ़िज़िक्स, हैअत, सियासत और अदब के मौजू पर 143 किताबें तसनीफ़ की। इनकी मशहूर तसनीफ़ है तारीख़ हिंद, जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। बातें मत कीजिए प्लीज़, आप लोगों से एक गुजारिश है कि बातें मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनको डिस्टर्ब होता है आपकी बातों से, तो माजरत के साथ आप लोग बातें न करें। डिप्टी नज़ीर अहमद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, असल नाम नज़ीर अहमद, पैदाइश 1836 बिजनौर में हुई, वफ़ात 1912 में। नज़ीर अहमद 1863 में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए। नावल निगारी का बाकायदा आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया और उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरअतुल उरूस है। नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का मौजू क्या है। नावल का मौजू अगर पूछ ले तो इनके नावल का मौजू मकसदी और इस्लाही हैं। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको इस्लाही मिलेगा, तो इस्लाही टिक करिएगा। तसनीफ़ात की बात की जाए तो इनके अहम नावल हैं मिरअतुल उरूस, जो 1869 में, बनातुन नाश 1837 में शाये, तौबतुन नसू 1877 में शाये, रोया सादिका इब्नुल वक्त 1888 में, अयामा और फसाने मुबतला ये इनके मशहूर नावल हैं। मजहबी तसनीफ़ की बात करते हैं तो अल हुकूक वल फ़राइज़ ख़ुतूत का मजमुआ है मौइज़े हसना, और ये मौइज़े हसना जो है डिप्टी नज़ीर अहमद ने जी अपने बेटे, अपने फ़र्जंद मौलवी बशीरुद्दीन, जब वो तालीम हासिल कर रहे थे, तालीम के ज़माने में उनको लिखे थे ये ख़ुतूत मौइज़े हसना। तर्जमा, इंडियन पिनल कोड का उर्दू तर्जमा ताज़ीरात हिंद के नाम से डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। इन्होंने कुरान का तर्जमा भी किया। अब बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो उर्दू के बाकायदा तनकीद निगार हैं। क्या है? बाकायदा तनकीद निगार और सवानह निगार दोनों हैं। असल नाम था ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, तखल्लुस था हाली, पैदाइश 1837 पानीपत, वफ़ात 1914 में। अल्ताफ़ हुसैन हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत दिल्ली की अदबी मजलिसों और शेफ्ता गालिब की सोहबतों में हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत दिल्ली की अदबी मजलिसों और शेफ्ता गालिब की सोहबतों में हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1856 में ज़िला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हुए। ज़िला हिसार, करनाल हिसार, हरियाणा में पड़ता है जी, वहीं पर। सर सैयद के रफ़क़ा में अल्ताफ़ हुसैन हाली इस हैसियत से मुमताज़ हैं कि इन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था। और अगर कभी ये बोल दे मौलवी ज़काउल्लाह साहब जी, मोहसिनुल मलिक और मौलवी चिराग अली, ये 3 तो रफ़क़ा हैं, अगर कभी ये पूछ दे कि सर सैयद के रफ़क़ा में जिसने सर सैयद के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था उनकी निशानदेही करना है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम वहाँ पर आएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली के तसनीफ़ात की बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नस्र निगारी का आगाज़ 1867 में हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ जो है मजालिसुन निसा है, जो TRE 1 में ही पूछा गया है। नस्र निगारी की हैसियत से हाली का बड़ा कारनामा ये है कि वो उर्दू में सवानह निगारी के बानी हैं। जी, सवानह निगारी के क्या हैं? बानी हैं। इन्होंने 3 सवानह उमरियाँ लिखी हैं। हयात सादी, जो सबसे पहली सवानह उमरी है और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है 1886 में। यादगार गालिब, जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की सवानह उमरी है 1897, और हयात जावेद, जो सर सैयद अहमद खां की सवानह है 1901 में। दूसरा कारनामा ये है कि इन्होंने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में लिखकर उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की रिवायत कायम की। इनके ख़ुतूत का मजमुआ है मकतूबात हाली,
اور یہ 1925 میں شائع ہوا اور 2 جلدوں میں شائع ہوا۔ بچوں کے لیے الطاف حسین حالی جو نظمیں لکھی، خدا کی شان، کہنا بڑوں کا مانو، جواں مردی کا کام، میں کیا بنوں گا، سپاہی چٹھی رساں، دھان بونا، مرغی اور اس کے بچے، راست گوئی اور امید، یہ سب الطاف حسین حالی کی مشہور نظمیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1857 اعظم گڑھ میں ہوئی، وفات 1914 میں ہوئی۔ شبلی نعمانی کے والد صاحب جو تھے وکیل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ شبلی بھی کیا بنے، وکیل بنے۔ شبلی نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت بھی کی۔ علامہ شبلی نعمانی 1883 میں MAO کالج علی گڑھ میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ کس کے؟ عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ شبلی نعمانی 1901 سے 1905 تک حیدرآباد میں ناظم سررشتہ علوم و فنون رہے۔ علامہ شبلی نعمانی 1905 میں لکھنؤ آ گئے اور ندوۃ العلماء کے تعلیمی شعبے کی ذمہ داری سنبھالی۔ شبلی نعمانی 1913 میں ندوۃ العلماء سے مستعفی ہوئے، یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ علامہ شبلی نعمانی عربی اور فارسی دونوں زبان پر قدرت رکھتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی شاعر بھی تھے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں علامہ شبلی نعمانی شاعر تھے کہ نہیں، لیکن علامہ شبلی نعمانی شاعر بھی تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے موضوعات کی بات کریں، سیاست، مذہب، فلسفہ، تاریخ، سوانح، سیرت، ادب، شاعری اور تنقید ہیں۔ NCERT کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، توصیف صاحب کریں تو دیکھیے وہاں پر بار بار میں بول رہا ہوں، مجالس النساء جو ہے یہ حالی کی نثری تصنیف ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور رشیدۃ النساء جو ہیں وہ ہیں اردو کی پہلی خاتون ناول نگار، اور ان کا جو پہلا ناول ہے اس کا نام ہے اصلاح النساء، نہ کہ مجالس النساء۔ علامہ شبلی نعمانی نے حالی کے بعد سوانح نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو المامون 1888، سیرت النعمان 1890، الفاروق 1899، یہ سب ان کی مشہور سوانح عمریہ ہیں جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر اور شیر العجم 1906 سے 1912 شبلی کی ادبی اور تنقیدی کتابیں ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کی آخری تصنیف ہے جسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ خطوط کا مجموعہ ہے مکاتب شبلی، اور خطوط شبلی کے نام سے خطوط کے مجموعے ان کے شائع ہوئے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں مرزا ہادی رسوا کی۔ مرزا ہادی رسوا کا اصل نام تھا محمد ہادی، قلمی نام تھا مرزا رسوا، تخلص تھا مرزا نہیں بلکہ تخلص تھا رسوا۔ پیدائش کی بات کریں تو 1857 لکھنؤ میں پیدائش ان کی ہوئی، وفات 1931 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ مرزا ہادی رسوا بلند پایہ ناول نگار تھے۔ مرزا ہادی رسوا نے 6 ناول لکھے، لیکن امراء و جان ادا ان کا شاہکار ناول ہے۔ یہ ناول لکھنوی تہذیب و معاشرت کی حقیقت پسندانہ ترجمانی کرتا ہے۔ رسوا کے دوسرے ناولوں میں ذات شریف اور شریف زادہ قابل ذکر ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں عبد الحلیم شرر کی۔ عبد الحلیم شرر کا اصل نام تھا عبد الحلیم، تخلص تھا شرر، پیدائش 1860 لکھنؤ میں، وفات 1926 لکھنؤ میں۔ عبد الحلیم شرر اودھ اخبار کے نامہ نگار بنے۔ عبد الحلیم شرر 1888 میں لکھنؤ سے رسالہ دل گداز نکالا۔ کیا نکالا تھا؟ رسالہ دل گداز نکالا تھا۔ TRE 2 میں ایک سوال تھا کہ رسالہ دل گداز کس نے نکالا، اور BPSC نے آپشن میں عبد الحلیم کی جگہ ان کا نام عبد الکلیم لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ عبد الکلیم لکھ دیا، اور بہت بچوں نے اس کو ٹک کر دیا، اور BPSC نے اس کو مانا ہی نہیں، عبد الحلیم کو مانا ہی نہیں، اور اس کا 1 نمبر بچوں کا کٹ گیا۔ یعنی ایک کاف، ہا کی جگہ کاف، جبکہ اردو ادب کی دنیا میں عبد الکلیم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جب عبد الکلیم نام کا کوئی بھی بندہ اردو ادب کی دنیا میں نہیں ہے جس نے اپنا نام پیدا کیا ہو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی جواب چوز کیا ہوگا، لیکن ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی، پھر یہاں بچوں کے نمبر کٹ گئے۔ جس طریقے سے اس بار ہوا کہ آزردہ اور جو ہے کیا تھا، یلدرم، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے اس آپشن کو نہیں مانا گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر بورڈ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عبد الحلیم شرر 1888 میں انگلستان کے سفر پہ چلے گئے۔ عبد الحلیم شرر انگلستان سے جب واپس
हुए 1898 में रिसाला दिलगुदाज दोबारा हैदराबाद से निकाला। जी, रिसाला दोबारा कहाँ से निकाला? हैदराबाद से निकाला। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीखी नावल निगारी की बुनियाद रखी। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में क्या किया? तारीखी नावल निगारी की बुनियाद रखी। तसनीफ़ात की बात की जाए तो फिरदौस से बनी इनका सबसे अहम तारीखी नावल है जो बार बार पूछा जाता है। इनके दीगर नावल हैं मलकुल अजीज़ व रजना, फलोरा फलोरंडा, फ़तेह उंदुलुस, अय्याम अरब। लखनऊ की मजहबी व मुआशरती तारीख पर मबनी गुज़िश्ता लखनऊ इनकी मशहूर तसनीफ़ है। मारूफ इंशाइये इनके हैं फूल बरसात, खिलता हुआ पत्ता, बज़्म कुदरत। ये तीनों इनके मारूफ इंशाइये हैं। तो दोस्तों ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सर सैयद अहमद ख़ां का अहद और सर सैयद अहमद ख़ां के मुसन्निफ़ीन को। सर सैयद अहमद ख़ां के अहद में बहुत सारी जो है असनाफ ने क्या किया, बाकायदा आगाज़ हुआ बहुत सारी असनाफ का, उन तमाम असनाफ़ों के बारे में पढ़ा। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी कर रहे हैं आप और आप चाहते हैं कि आपकी बेहतर तैयारी हो तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका हौसला अफजाई के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी मोहब्बतों के लिए, आप सबकी नवाजिशों के लिए। आप सबसे अदबन एक गुजारिश हमारी आपसे कि AR डिजिटल को फैलाने में, आम करने में हमारी मदद कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। हमारे लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि AR डिजिटल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी तैयारी कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका मुक़द्दर होगी, कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। वक्त को बर्बाद मत कीजिएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।